Today we'll discuss the next section of the electric flux. Today we'll discuss the electric flux due to the charge inside the closed surface. But before discuss that article, first we'll discuss a term named as a solid angle. As we discussed in the class 11th standard, two supplementary physical quantities, plane angle and the solid angle. So what is a plane angle? A three-dimensional angle subtended by any surface of a sphere at the center of sphere. Any surface of the sphere, when subtended an angle at the center of a sphere, that angle is called a solid angle. So how can we define a solid angle? Suppose if I am taking a particular surface of a sphere of surface area ds, and that particular surface subtend an angle at the center of a sphere, that angle is d omega. So that angle is called solid angle. So how can we define this solid angle? ये distance यदि r ले लें तो d omega is equals to ds by r square. So how can we define a solid angle? The solid angle subtended by a surface of a sphere at any point is the ratio of the surface area of the surface to the square of its distance from the point at which the solid angle is subtended. Square of the, ये r क्या है? R is the distance of the surface from the point where its angle is subtended. So the solid angle is the ratio of surface area to the square of distance from the point where angle is subtended, provided that this surface is held perpendicular to the line joining the surface to the point. ये जो surface है, that is held perpendicular to the line joining the point. ये जो surface है, इस point के about हमेशा perpendicular रखी हुई है. तो जब ये surface perpendicular रखेगी, तो ये surface इस point पर जो angle subtend कर रही है, ये angle आपका क्या बोला जाएगा? Solid angle. तो how can we define a solid angle? An angle subtended by any surface of sphere at any point is equal to the ratio of surface area to square of this distance from the point where angle is subtended, provided that surface is held perpendicular to the line joining the surface to the point. ये जो सरफेस है वो हमेशा इस पॉइंट के अबाउट परपेंडिकुलर क्या होगी? प्लेस की जाएगी. तो ds by r स्क्वायर, ये जो रेशियो होगा वो क्या बोला जाएगा? सॉलिड एंगल. यदि ये पूरी सरफेस आपका कंप्लीट स्फीयर होता, the angle subtended by the whole sphere at its center, so that is a maximum value of solid angle. तो maximum value of solid angle क्या हो जाएगा? If I am taking ds is 4 pi r square, that is the whole surface area of the sphere, divided by r square.
So the maximum value of solid angle is 4 pi and 4 pi stay radian. देखिए सॉलिड एंगल का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, स्टे रेडियन. इफ आई एम कंसिडरिंग कि ये पूरी सरफेस जो है वो कंप्लीट स्फीयर हो जाए, तो कंप्लीट स्फीयर सेंटर ऑफ स्फीयर पे कितना एंगल सस्टेन करेगा, मैक्सिमम 4 pi stay radian. So that is the maximum value of solid angle. Is this clear? What is solid angle? Any doubt in that part? ठीक है, अब ये जो लॉजिक है वो कहाँ यूज आ रहा है वो हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर. जो हमारा पॉइंट है, फ्लक्स ड्यू टू द चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस. तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज inside the closed surface. We are taking a electric charge, एक पॉइंट चार्ज दिया है और वो पॉइंट चार्ज जो है वो किसी क्लोज सरफेस में एनक्लोज है. तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज होगा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है. सपोज वी आर टेकिंग अ पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज लिया हमने एंड दैट इज एनक्लोज बाय एनी क्लोज सरफेस. Now shape and size of closed surface is not symmetric. किसी भी एक enclosed एक non symmetric surface के अंदर हमने इस चार्ज को enclose कर दिया. Now this charge is positive point charge है, so the electric field lines are radially outward. तो इस तरीके से electric field lines इस तरीके से radially outward रहेंगी. And electric field intensity due to the point charge क्या होगा, KQ by R square. यदि उस पॉइंट की चार्ज से डिस्टेंस R है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट क्या हो जाएगी, KQ by R square. That is the intensity of electric field at a point P which is at a distance R from the point charge. But वो डिस्टेंस जैसे अब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, KQ by R square. यदि उस पॉइंट की चार्ज से डिस्टेंस यदि R होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, KQ by R square. अब देखिए हमें कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस चार्ज की वजह से एनक्लोज हुआ है वो कैलकुलेट करना है. तो हमने बेसिक डेफिनेशन जो पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वो क्या थी, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस परपेंडिकुलरली एंड न्यूमेरिकली इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द एरिया. तो अब इस चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स एनक्लोज हुआ है तो कैलकुलेट करने के लिए एक पर्टिकुलर कोई भी एक सरफेस एनक्लोज कर देंगे. जैसे ये सरफेस हमने एनक्लोज करी और इस सरफेस का सरफेस एरिया हमने ले लिया ds. ठीक है, अब इस सरफेस का एरिया वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है. तो देखिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है, पैरेलल हो गए. हमने इस सरफेस के अंदर एक सरफेस एरिया सेलेक्ट किया. ठीक है, अब ये जो सरफेस है, ये चार्ज, ये जो सरफेस है ये इस पॉइंट पर क्या एंगल सस्टेन कर रही है, फॉर एग्जांपल डी ओमेगा. दिस सरफेस सस्टेन एन एंगल डी ओमेगा एट द पॉइंट वेयर द चार्ज इज प्लेस्ड. जहां चार्ज आपका प्लेस्ड है उस पॉइंट पर वो कितना एंगल सस्टेन कर रही है, डी ओमेगा. Now the electric flux due to point charge by electric flux due to smaller surface, तो कितना होगा, d phi e. d phi e की वैल्यू क्या होगी, e ds cos 0, क्योंकि आपका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है. तो ये हो गया E into ds.
क्या हो गया, E इंटू ds। अब सपोज हम ये बोले कि सरफेस को पॉइंट से मिलाने वाली जो डिस्टेंस है, लाइन है, उस लाइन की डिस्टेंस r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, k q बाय या फिर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय r स्क्वायर इंटू ds। ये फ्लक्स हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हमने क्या रखा, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू ds। ठीक है, अब देखिए ds की जगह हमने क्या वैल्यू प्लेस करी। नाउ दिस ds इज इक्वल्स टू d ओमेगा इज इक्वल्स टू ds बाय आर स्क्वायर, तो ds इज इक्वल्स टू d ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। ds क्या हो जाएगा, ds इज d ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई देखिए, बाय द स्मॉलर सरफेस द फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय द स्मॉलर सरफेस इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू d ओमेगा। नाउ वी आर basically we are interested to total flux enclosed by the closed charge, या total flux enclosed by this electric charge। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, phi e that is the integration of d phi e। तो phi e की वैल्यू क्या होगी, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा। तो d ओमेगा इंटीग्रेशन करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ d ओमेगा कितनी होगी, 4 पाई। तो phi e की वैल्यू क्या होगी, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई। 4 pi से 4 pi cancel, the flux enclosed by electric flux enclosed by electric charge, electric flux due to the charge enclosed by closed surface is q by epsilon naught। ये जो रिजल्ट आया है, this result has a two important characteristic कि the flux enclosed by electric charge which is enclosed in a closed surface is never depends on the shape and size of the electric charge, shape and size of the closed surface, and never depend on the position of point charge inside the closed surface। ये जो फ्लक्स की वैल्यू है, ये फ्लक्स की वैल्यू ना तो क्लोज सरफेस के शेप साइज पे डिपेंड करेगी और ना ही उस क्लोज सरफेस के अंदर पॉइंट चार्ज की लोकेशन पे डिपेंड करेगी, क्योंकि फ्लक्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनक्लोज इन अ क्लोज सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लोज सरफेस में कितना चार्ज इंक्लोज है, वो चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज q in upon epsilon naught। So the electric flux due to the electric charge inside the closed surface is never depends on the shape and size of the enclosed surface and never depends on the position of the charge inside the closed surface। तो चार्ज को एनक्लोज करने के लिए आप किसी भी तरीके का क्लोज सरफेस ले सकते हैं और उस चार्ज की उस क्लोज सरफेस से कोई भी लोकेशन हो सकती है, लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता है कि वो क्लोज सरफेस की अंदर वो किस लोकेशन पे प्रेजेंट है, बाउंड्री पर है, सेंटर पे है, कहीं साइड पर है, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। जैसे आपका ये चार्ज है यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है, इनसाइड द क्लोज सरफेस होना चाहिए। और ये शेप और साइज जो है वो कोई भी शेप और साइज का आपका क्लोज सरफेस हो सकता है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। इज इट क्लियर? Next topic is electric flux due to the charge outside the closed surface। Electric flux due to charge outside the closed surface। अभी आपकी क्लोज सरफेस ये है and the charge point charge is outside the closed surface। So what will be the charge, what will be the electric flux due to the charge? कितना होगा बता सकते हैं? What will be the value of flux due to the charge if the charge is outside the closed surface? कोई बता सकता है?
अब देखिए यदि चार्ज आउटसाइड द क्लोज सरफेस है तो कैसे चेक करेंगे। देखिए अब ये पॉइंट चार्ज अपने सराउंडिंग फील्ड लाइंस क्रिएट कर रहा है, so the field lines passing through the closed surface, तो फ्लक्स क्या होता है, the total number of field lines passing through the closed surface। अब सपोज आप ये पर्टिकुलर सरफेस सेलेक्ट करते हैं तो इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है, तो एंटरिंग फ्लक्स क्या होगा आपका, हमेशा इनकमिंग फ्लक्स हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, और आउटगोइंग फ्लक्स क्या होगा, हमेशा आपका नेगेटिव। तो यहाँ फ्लक्स एंटर कर रहा है तो यहाँ फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, ठीक है, तो यहाँ फ्लक्स हो जाएगा नेगेटिव। तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ, +5 -5 C। So if the charge is outside the closed surface, if the charge is outside the closed surface, then the total electric flux enclosed is 0। तो इस क्लोज सरफेस में जितना चार्ज होगा, that charge divided by epsilon naught is called electric flux। यदि इस enclosed surface में कोई भी चार्ज नहीं है तो टोटल फ्लक्स आपका क्या होगा, 0 रहेगा। If the charge is outside the closed surface, then total flux is 0। Is that clear? Any doubt? देखिए सपोज एक क्लोज सरफेस है that contain the charge +Q1 -Q2 -Q3 +Q4। आपको क्वेश्चन पूछा कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स enclosed by closed surface। So that is phi E, phi is equals to Qn upon epsilon naught। इस क्लोज सरफेस में जितना नेट चार्ज है, that net charge divided by epsilon naught। तो Q1 plus Q4 minus Q2 minus Q3 upon epsilon naught। So that is the total electric flux enclosed by the closed surface। देखिए प्रीवियस क्लास के अंदर जो हमने डिस्कस किया था, वहां फ्लक्स का डेफिनेशन क्या था, EDS cos थीटा। उसी बेसिक लॉजिक को यूज करके हमने क्या बताया कि इफ द क्लोज सरफेस एनक्लोज एनी चार्ज, तो उस चार्ज की वजह से टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको इस तरीके से EDS cos थीटा कैलकुलेट करके फ्लक्स कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी बेसिक लॉजिक को यूज करके हमने ये फ्लक्स का एक वैल्यू कैलकुलेट किया। यदि वो फ्लक्स किसी चार्ज की वजह से है, पॉइंट चार्ज की वजह से है या किसी भी चार्ज की वजह से है, तो टोटल चार्ज एनक्लोज इन अ क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इज इट क्लियर? आया समझ में आपको? एनी डाउट इन दैट पार्ट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है a point charge is enclosed in a cubical box. A point charge is enclosed in a cubical box. Calculate the total flux associated with the box. Also calculated the flux associated with the each face of the box, and also calculate the flux associated with the शेडेड एरिया ऑफ द सरफेस। आपको क्या बोला है, एक क्यूबिकल बॉक्स है, इस क्यूबिकल बॉक्स के अंदर एक चार्ज आपने प्लेस किया है, ये एक चार्ज प्लेस किया है, तो आपको पहले कैलकुलेट क्या करना है, द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद the cubical box।
तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया आर्टिकल के अंदर कि यदि आपका कोई भी चार्ज किसी क्लोज सरफेस में क्लोज है तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये चार्ज किस तरीके की सरफेस से इनक्लोज है या कहां पर लोकेटेड है इस पर डिपेंड नहीं करता है। ये चार्ज यहां होता, यहां होता, यहां होता, यहां होता, यहां होता, यहां होता, कहीं पर भी होता, उसके पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है और ना ही इस क्यूबिकल बॉक्स की शेप साइज पे डिपेंड करता है। कितना चार्ज इनक्लोज है दैट चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उसने, टोटल फ्लक्स associated with each face of the box। हर एक क्यूबिकल बॉक्स की हर एक फेस से कितना फ्लक्स एसोसिएटेड होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए टोटल फ्लक्स कितना इंक्लोज है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ एज वी नो दैट देयर आर 6 फेसेस, तो ये जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी वो इक्वली सारी डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो सारी फेसेस से क्या होगा, चार्ज या फ्लक्स क्या होगा, इंक्लोज होगा। तो द फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच फेस, द टोटल फ्लक्स इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ टोटल फेसेस 6 फेसेस है, तो 6 फेसेस से कितना इंक्लोज हो रहा है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से कितना हो जाएगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन। The total flux associated with each face of the box is Q upon 6 epsilon naught. Is it clear? देखिए ये चार्ज जो है वो क्यूबिकल बॉक्स के अंदर है, तो उस चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स इंक्लोज हुआ, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो टोटल फ्लक्स है वो 6 ही फेसेस में इक्वली क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। तो एक फेस के साथ कितना शेयर होगा, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। एक टोटल 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस से कितना इंक्लोज हो रहा है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से कितना एसोसिएट होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाय 6। इज इट क्लियर? ठीक है। अब तीसरा पार्ट क्या पूछा है, दैट फ्लक्स एसोसिएटेड विद द शेडेड एरिया ऑफ द सरफेस। अब यहां एक पर्टिकुलर एरिया शेड किया है कि एक फेस ली है, इस पर्टिकुलर फेस के इस शेडेड रीजन से कितना फ्लक्स इंक्लोज होगा, इससे कितना फ्लक्स इंक्लोज होगा ये आपको बताना है। तो देखिए अभी हमने कैलकुलेट किया कि इस पर्टिकुलर फेस से कितना फ्लक्स इंक्लोज हो रहा है। द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द ईच फेस ऑफ द बॉक्स इज Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अब ये एरिया कितना है, टोटल एरिया का 1/4, 1 2 3 और 4, इस पूरे फेस के एरिया को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो ये एरिया इस टोटल फेस के एरिया का 1/4 है। तो इस स्मॉलर एरिया से कितना फ्लक्स इंक्लोज होगा, 1/4 ऑफ द फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच फेस। तो ये हो जाएगा Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक फेस से कितना एसोसिएट हो रहा था, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो इस शेडेड रीजन से कितना हो जाएगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/4। क्यों, क्योंकि ये एरिया टोटल फेस के एरिया का 1/4 है। तो 1/4 इनटू Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। सो दैट एरिया इज Q अपॉन, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, two charges of magnitude -3q and +2q are placed at the point a, 0 and 4a, 0। दो चार्जेस हैं आपके पास, one of the magnitude -3q and one of the magnitude of 2q. One is placed at a, 0 and second one is placed at 4a, 0। ठीक है, ये 2a, 0, ये 3a, 0 एंड ये है आपका 2q that is placed at a 4a, 0। Now what is the electric flux due to
due to these charges through the sphere of radius 3a with its center at the origin. Origin कहाँ है? ये है 0,0, that is the origin. तो आपने क्या किया? Now you are enclosed these charges by a sphere of radius 3a whose center is at 0,0. तो हम क्या करेंगे? इन चार्ज को इंक्लोज करने के लिए एक स्फीयर हमने ड्रॉ किया 3a रेडियस का, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका स्फीयर हो गया 3a रेडियस का, ठीक है। थोड़ा सा अब क्योंकि सेंटर थोड़ा सा ज्यादा इस तरफ है, तो ये इस 3a रेडियस का स्फीयर का जो सेंटर है वो 0,0 है। तो इस स्फीयर के थ्रू कितना चार्ज इंक्लोज हुआ? इस स्फीयर के थ्रू कितना चार्ज इंक्लोज हुआ? -3q। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? phi E = -3q/ε0। ये चार्ज जो है वो इस स्फीयर के अंदर एनक्लोज नहीं होगा। ये जो चार्ज है इस स्फीयर के अंदर एनक्लोज नहीं होगा। तो एनक्लोज नहीं होगा तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज एनक्लोज बाय क्लोज सरफेस इज ओनली -3q। तो -3q/ε0। ये वाला चार्ज आउटसाइड द क्लोज सरफेस है, तो उसके थ्रू फ्लक्स एनक्लोज नहीं होगा। इज इट क्लियर? क्लोज सरफेस जितना चार्ज एनक्लोज कर रही है दैट चार्ज डिवाइड बाय ε0, दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एनी डाउट इन दैट पार्ट? Is there any doubt? Next question है, a point charge of 10 microcoulomb is at a distance of 5 centimeter directly above the center of a square of a side 10 centimeter. What is the magnitude of electric flux through the square? Also calculate the flux if we change the position, if we change the distance of the charge from the center of square. Now distance of the charge from the center of square is 10 centimeter and the side of a square is 20 centimeter instead of 10 centimeter. मतलब आप क्या किया? सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि पहले सेंटर से जो चार्ज की डिस्टेंस थी वो 5 सेंटीमीटर थी, अब 5 से 10 सेंटीमीटर कर दी है। और दूसरा जो स्क्वायर का जो आपका सरफेस था उस स्क्वायर सरफेस की जो साइड 10 सेंटीमीटर थी उस 10 सेंटीमीटर को बढ़ा के कितना कर लिया है? 20 सेंटीमीटर कर लिया है। तो उस सेकंड सिचुएशन में फ्लक्स कितना होगा? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, देखिए एक स्क्वायर साइड है, सॉरी एक स्क्वायर सरफेस है, ठीक है, जिसका साइड आपको कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर, और इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक चार्ज प्लेस किया है और मैग्नीट्यूड 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, एक स्क्वायर सरफेस है, उसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम का प्लेस किया है और स्क्वायर सरफेस की साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो आप इससे कितना फ्लक्स इंक्लोज होगा वो आपको बताना है। बता सकते हैं इससे कितना फ्लक्स इंक्लोज रहेगा? एनीबॉडी वो बता सकता है कितना फ्लक्स इंक्लोज होगा? देखिए फ्लक्स एंक्लोज करने के लिए हमने जो पॉइंट डिस्कस किया कि द फ्लक्स ड्यू टू द चार्ज एंक्लोज बाय क्लोज सरफेस इज q in upon epsilon naught। तो इस चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स एसोसिएट होगा या एंक्लोज होगा वो कैलकुलेट करने के लिए पहले इस पॉइंट चार्ज को हमें एंक्लोज करना पड़ेगा बाय एनी क्लोज सरफेस। तो हमने क्या किया, इस
स्क्वायर फेस को यूज करके हमने 5 और स्क्वायर फेस बनाई और एक क्यूब बना लिया। क्या बना लिया? क्यूब। और ये आपका चार्ज यहां प्लेस है, ठीक है। और ये साइड आपकी 10 सेंटीमीटर और ये भी आपकी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। Now the charge is enclosed by a closed surface. So whenever the charge is enclosed by a closed surface, the electric flux is Qn upon epsilon naught. It never depends on the shape and size in which the charge is enclosed and never depend on the location. ये चार्ज कहाँ पर लोकेटेड है उस लोकेशन पे भी डिपेंड नहीं करता है और किस सरफेस से इंक्लोज है उस पे भी डिपेंड नहीं करेगा। तो द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द बॉक्स कितना हुआ? Qn upon epsilon naught। बट हमें किसके थ्रू कैलकुलेट करना है? द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस ओनली अ स्क्वायर सरफेस। तो ये जो स्क्वायर सरफेस है दैट इज वन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स। तो द फ्लक्स एसोसिएटेड विद वन फेस ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा? Qn upon 6 epsilon naught। So that is a simple answer। Qn upon epsilon naught, Q की वैल्यू है 10 into 10 to the power minus 6 upon 6 into epsilon naught। epsilon naught की वैल्यू 8.85 into 10 to the power minus 12। इसको सॉल्व करेंगे you will get a value of electric flux। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि सपोज इस क्यूबिकल बॉक्स की डायमेंशन में 10 सेंटीमीटर के बजाय 20 सेंटीमीटर कर लो और इस चार्ज की लोकेशन में 5 सेंटीमीटर के बजाय 10 सेंटीमीटर कर लो। What will be the new value of flux? The value of flux is the same because the value of flux is never associated with the shape and size of the enclosed surface and never depends on the position of charge inside the closed surface। ये चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर कहाँ प्लेस्ड है उस पर भी डिपेंड नहीं करता है और ना ही इस एनक्लोज सरफेस का शेप साइज क्या है उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। सो दैट अ सिंगल, ये पूरा क्वेश्चन जो है वो 5 मार्कर का था। आंसर इज सिंपल Qn upon 6 epsilon naught इन बोथ द केसेस। ये पूरा क्वेश्चन 5 मार्कर के अंदर पूछा गया है, 2 बार पूछा है, 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में रेगुलरली पूछा है।